मैं शुरुआत करदा पंधेर साहब तुहाडे तो, होपफुली मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही होएगी। पंधेर साहब, ये नाम वाले सुझाव, कमेटी वाला सुझाव, सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ? देखो, एक तो जी ऑर्डर की कॉपी वो अजे साडे कोल पहुंचनी बाकी है, फिर दोवां फोरमां दी राय होगी। ठीक है, फैसला बट देखो जिहड़ा स्टेटस को होया भी जैसा स्थिति रखो कि बॉर्डर ना खुले जी, साडा मनना भी देखो पंजाब ते हरियाणा की आर्थिकता ते वाकया ही असर पै रहा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। नहीं, मैं पंधेर साहब इस करके सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਗੋਂ ਟਕਰਾਵੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਜਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੜਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 50% ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ 2020 ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ 2021 ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਜੋ ਤਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਨਿਊਟਰਲ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਬੜ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਿਬੜ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੇ, ਸਿੱਧਾ ਨਿਬੜਦੇ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟੀ ਹੁਣ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇਸੀਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਘਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਵਾਸਨ ਚਾਹੀਦੇ? ਐਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਦਾ, ਇਹ ਪਲਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡੇਲੀ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣਾ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ
ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ 2 3 4 5 ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਰੇਡੀਆਂ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ? ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 19 ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ प्रियदर्शनी सिंह जुड़े हुए ने। होपफुली मेरी आवाज होना तक जारी होगी। प्रियदर्शनी जी, आवाज आ रही है आप तक? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, चलिए, मैं शुरुआत आपसे करना चाह रहा था, लेकिन उस समय थोड़ा नेटवर्क का इश्यू जरूर था। लेकिन लोग समझना चाहते हैं कि अब हरियाणा सरकार का स्टैंड क्या है। क्या आप कुछ नाम के सुझाव देने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर की लीजिए ये 4-5 नाम हैं और इनके जरिए इस मामले को सुलझाइए? और आपसे पहले जब मैं बात किसान नेताओं से कर रहा था, वो सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीति और नीयत हमें दोनों पर शक है। देखिए, आपको सादर मेरा प्रणाम और यहाँ पे बैठे सभी पैनलिस्ट साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। मुझे इनकी कथनी और करनी, मैं कुछ किसान नेताओं को सुन रही थी, बहुत ध्यान से सुन रही थी, और आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता शायद यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको भी सुन रही थी। ठीक है, इनकी कथनी और करनी में कैसे फर्क है। स्वामीनाथन कमेटी की ये बात कर रहे हैं, मैं आपको यकीन के साथ बोल सकती हूँ और गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए कि कितने पेजेस की स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं कितने पेजेस की हैं, इनमें से एक भी नहीं बता पाएगा, मैं गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, और दूसरी बात कि जहां पे ये बोलते हैं कि हम किसानों के हित पे नहीं है, मैं आपको बता दूं कि 2014 में 2013 और 14 का जो बजट हुआ था, यानी कि पिछले साल का जो बजट था, उसमें सरकार ने सिर्फ 1,25,035 करोड़ के करीब एग्रीकल्चर में ही जो यूज हुआ है। जहां पे ये बात करते हैं कि पंजाब में किस तरीके से पराली का हाल है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। सबको मालूम है कि पराली के आंकड़े, जबकि पराली के आंकड़े कितने खराब थे पंजाब में, और हरियाणा में किस तरीके से पराली को हमने संभाला है, ये किसी से भी बात छुपी नहीं है। इन्होंने एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की है, क्योंकि इनसे हो तो कुछ नहीं सकता, तो इन्होंने झूठ का पुलिंदा तैयार करने की कोशिश की है। अब झूठ का पुलिंदा कैसे तैयार किया है? स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो पॉइंट्स लिखे थे, जो पॉइंट्स लिखे थे, हूबहू हमने उसे लागू किया। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बगल का राज्य है, और इनसे पूछ लीजिए कि एमएसपी पे इन्होंने किसानों को कितनी रिबेट दी है, और हम बता देते हैं कि हमने कितनी रिबेट दे रखी है। 2014 के बाद के मैं आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ। 2014 के बाद से आंकड़ा ये कहता है कि इन्होंने, जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, तो हुड्डा साहब ने सिर्फ दो ही ग्रेन्स में एमएसपी दे रखी थी, यानी कि आपको दे रखा था कि आपको सिर्फ अनाज हो, 2 अनाजों में दे रखा था रिबेट।
मतलब वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आती थी तो दी थी इन्होंने। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें हरियाणा सरकार की, तो हमने इस समय 14 फसलों पे एमएसपी दे रखी है। ठीक है। ज्वार की बात कर रही हूं मैं, ज्वार की बात कर रही हूँ। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच पे रोक रहा हूं। देखिए बहुत ब्रॉडर पिक्चर है, अगर हम किसानों के इस तरह से इश्यूज के ऊपर जाएंगे, बहुत वाइड इशू है। मैं थोड़ा सा उस बॉर्डर के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर पूरा प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जिन किसानों की बात कर रहे हैं वो असल में किसान नहीं है, वो खालिस्तान है, जिनको ये जो खालिस्तान वाले इनको फंडिंग करते हैं। हकीकत ये है कि ये अपना प्रशासन शासन चला ही नहीं पा रहे। मैं गौरव उत्ते सर ऑब्जेक्ट हैगा, मतलब शब्द वापस लाओ। और बीजेपी का एक किरदार हैगा, बीजेपी का एक कैरेक्टर हैगा। एक सेकंड नहीं प्रियदर्शनी जी, वहां पर हजारों की संख्या में किसान है, आप सबको खालिस्तान कह रहे हैं, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो गया एकदम से। बिल्कुल नहीं। अब पीयूष गोयल जी, बहन जी, पीयूष गोयल जी क्या किसको मिलने आए थे? खालिस्तानियों को मिलने आए थे। चलिए एक एक करके मेरी रिक्वेस्ट है पंदेर साहब मैं तो वापस आ रहे हैं, मैं थोड़ी गल लेके जाना है। खालिस्तानियों को आए थे उन्होंने मंत्री मिलना। पंजाब में वो नहीं पहले सुनिए बहन जी, मेरी बात सुनिए। आपके मंत्री खालिस्तानियों से मिलने आए थे, आपके मंत्री खालिस्तानियों से मिलने आए थे, इसका जवाब दीजिए। नहीं आपके मंत्री खालिस्तानियों से मिलने आए थे, आप बोलिए, अब जवाब दीजिए। चंडीगढ़ में 4 राउंड की मीटिंग खालिस्तानियों से, इसके ऊपर बोलिए। आपके मंत्री खालिस्तानियों से मिलने आए थे? नहीं, आप बिल्कुल एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं पंदेर साहब, प्रियदर्शनी जी थोड़ा ये वेट करो, एक करके गल रखते रहो, लोगों को पता लगेगा। मैं पंदेर साहब होल्ड करो, मैं थोड़ी गल लेके जाना है, मैं जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूं। पंदेर साहब 30 सेकंड दो, मैं थोड़ी को आना है। पंदेर साहब थोड़ी गल आ गई, मैं उसके उत्ते रिएक्शन लेने की कोशिश करता हूं। गर्ग साहब 30 सेकंड दियो। प्रियदर्शनी जी देखिए, आपने खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल कर दिया, बड़ा जबरदस्त विरोध पंजाब में इस तरीके से होता है अगर कोई इसके ऊपर ऐसे रिएक्ट करे। उनका तर्क यह है कि केंद्र के मंत्री चंडीगढ़ में आए, 4 दौर की बैठक हुई, तो वो किनके साथ बैठक हुई? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जिस तरीके से इन्होंने उग्रवाद पंजाब में फैलाने की कोशिश की है, पराली का, मैं तो पराली के मुद्दे पे नाम लीजिए, छोटा राज्य है, इनसे छोटे भाई से ये नहीं सीख पाए कि किस तरीके से पराली को कंट्रोल किया जाता है, पराली लोग संभाल नहीं पाए कि कौन सी बात नहीं पहले सर जेड़ा शब्द इन्होंने यूज कीता उस शब्द दे उत्ते पहले खालिस्तान वाले शब्द दे उत्ते तुसी अपनी स्थिति स्पष्ट करो। ये पहली बारी नहीं हैगा, बीजेपी लगातार जेड़ा हैगा, चाहे कंगना रनौत तो लेके तुसी अजय मिश्रा टोनी जिसने कि साडे किन्ने किसानां दे उसदे पुत्र ने अपनी गड्डी थले रगड़ के मारता, अज तक जानी कि प्रधानमंत्री जी शब्द उसदे उत्ते नहीं बोले। और खालिस्तानी कौन होता है? तुसी जानी कि टेररिस्ट तुसी हो, तुसी लगातार तशद्दुद कर दो। पंजाब दे 700 तो ਵੱਧ किसान जेड़ा आपका एक शब्द उसके ऊपर पूरी डिबेट इस समय केंद्रित हो चुकी है। नहीं मैं एक गौर चबला एक मिनट सुन लो। जी पंदेर साहब प्रियदर्शनी रुकिएगा, 30 सेकंड दीजिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। पंदेर साहब ने अपनी गल रख दो, प्रियदर्शनी 30 सेकंड दीजिएगा। जी पंदेर साहब नहीं देखो, ये सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ मान रहे हैं, तो पहले मेरी गल सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने ਅੱਜ न्यूट्रल कमेटी किन्ना वास्ते बनाउन ਨੂੰ ਕਿਹਾ? अदालत ਨੂੰ भी रद्द करते हैं कि खालिस्तानी वाली कमेटी बन रही अज, भावें कमेटी नहीं। एक गल का जवाब। दूसरी गल का, देश की पार्लीमेंट में अज खालिस्तानियों जान का थोड़ी सरकार ने इजाजत देती। बोलो तुसीं, ये पार्लीमेंट ओपोजिशन के लीडर ने अज खालिस्तानियों नाल मुलाकात की है, तुसीं दलील नाल जवाब दो भैन जी, दलील नाल अपनी गल रखो। किन्नू कह रहे जी खालिस्तानी? ठीक है, चलो पंजाब पॉइंट आ गए। प्रियदर्शनी जी कंप्लीट कर लीजिए, संजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं आम आदमी पार्टी के अपने साथी प्रवक्ता को ये बात बताना चाहती हूँ कि ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक इंटरनेशनल मैगजीन जो कि सबसे प्रसिद्ध मैगजीन है, जिसका हुंकार आपके खुद के जो पार्टी के संयोजक है, मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर है, किस मामले में? शराब घोटाले के मामले में है। वो उनके खुद के वरिष्ठ नेताओं ने वो पिक्चर्स आई हैं उस मैगजीन में कि किस तरीके से उग्रवादियों के साथ, जिन्होंने उग्रवाद फैलाने की कोशिश की पंजाब में, उनके साथ खड़े हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से जनता के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए खालिस्तान शब्द ऐसा है जिसका इस्तेमाल आपने किया, लेकिन इसको लेकर इससे पहले बहुत बवाल हो चुका है ऑलरेडी कि खालिस्तानी बोल दिया या फिर प्रदर्शन में बैठे लोगों को उनके साथ कंपेयर कर दिया, उनकी
उनका जिक्र कर दिया। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। किसान किसान होता है, मैं खुद किसान मैं परिवार कहना नहीं, गौरव देखिए, शुक्ला मैं खुद किसान परिवार से ਇਹਨਾਂ मैं ਨੂੰ किसानों ਪਹਿਲੇ की बहुत स्पष्ਟ इज्जत ਕਰਨ करती हूँ। ਖਾਲਸਤਾਨੀ लेकिन ਕਿਆ किसाਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ नहीं, आप ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बता ਮਾਫੀ दीजिए, ਮੰਗਣੀ एक ਚਾਹੀਦੀ सेकंड माफी में ਮੰਗਣੀ पूछ लेना ਚਾਹੀਦੀ है, अपने हिसाब से पूछ लेना है। तो बता दीजिए साहब। प्रियदर्शनी जी, आप बता दीजिए खालिस्तानी किसको बोल रहे हैं आप? मैं कुछ जो एक तबका है जो अपने आप को सो कॉल्ड किसान बोलते हैं, जबकि वो किसान नहीं है। मैं कौन आपको से बताऊं, so called? so-called नाम एक तो तबका लीजिए, है। नाम लीजिए कौन से so called? आप अपने नेताओं से जाके पूछिए। नहीं, नहीं, पंधेर साहब लीड कर रहे हैं पूरे प्रदर्शन को। मंत्री मिलने प्रियदर्शनी आए। पंधेर साहब हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, शंभू वाले प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं, सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल, ये दो नाम सबसे चर्चा में है। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਪੀ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ठीक है, चलो थोड़ा इंतजार करो, मैं आगे बढ़ाना है डिबेट नु। संजय राय जी साडे नाल जुड़े हुए ने। संजय राय जी, आपने सुना होगा जिस तरह से पूरी डिबेट में अभी तक बात हुई है। मैं एक और चीज इसके ऊपर भी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल लगातार पिछले आंदोलन के दौरान भी हुआ, इस बार भी, और बड़ा जबरदस्त इसके ऊपर इतराज पंजाब के लोगों को और जो पंजाब के लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको था। लेकिन इस बीच में एक और चीज समझना चाहता हूं कि एक लाइन होती है, एक लाइन है जो किसानों के पक्ष में लोगों की, चाहे वो एक्सपर्ट्स हो, और एक लाइन है जो कहीं ना कहीं बॉर्डर खुलवाने के पक्ष में, ठीक है किसान अपनी मांगे रख रहे हैं लेकिन रोड को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, आप प्रदर्शन करते रहिए। क्या ऐसे न्यूट्रल लोगों को ढूंढ पाना और उनके ऊपर सभी पक्षों को सहमत कर पाना मुमकिन है कि जो किसान की भी बात कर रहे हो, सरकार की भी बात कर रहे हो, रोड खोलने की भी बात कर रहे हो, किसानों की एमएसपी के ऊपर भी बात कर रहे हो? जी देखिए, अभी तक की जो डिबेट्स में आया, बहुत उत्तेजना भी हो गई, सब चीज हो गई, और इसमें शब्द भी खालिस्तान का इस्तेमाल किया गया, खालिस्तानी शब्द का। हाँ, उसको जैसे कि अब क्लियर करना चाहिए बीजेपी प्रवक्ता को, इस चीज को मेन बात है, मेन फोकस होना चाहिए आज जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उस चीज पर। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किस गाइडलाइंस को उन लोगों को फॉलो करना है, तो ये मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट आज बात को हल करने पे उतारू है, ना कि उसको उलझाने पे। अब पार्टियां उलझाएंगी, उनके लोग उलझाएंगे, एक दूसरे को उकसा करके उलझा देंगे, तो मामला बिगड़ेगा। आज बात है किसानों के मुद्दे को, जिसको मैं पिछली डिबेट में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, पंधेर साहब भी थे और दूसरे प्रवक्ता भी रहे होंगे, उन्होंने देखा भी होगा। मैंने क्लियर कहा था कि एक कमेटी बननी चाहिए जो केंद्र के कृषि मंत्री को एक परस्यू करे, या कृषि मंत्री यहाँ आए, या मैंने उसमें जिक्र भी किया था कि दिल्ली जाने की क्या आवश्यकता है। और सरकार को सीधी बात यह है कि वहां जाके अराजकता फैलाने, जो मैं उस दिन भी कह रहा था कि जो इनकी जेसीबी, इनके मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स और सब चीजों का वो जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने वो सवाल पूछे, क्यों पूछे? क्योंकि सभी के मन में यह है कि वहां जाकर के पूरी उथल पुथल, क्योंकि दिल्ली अगर उथल पुथल हुई तो सारे राज्य उथल पुथल हो जाएंगे, क्योंकि पूरे देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि वहां हैं, संसद इस समय चल रही है, तो सब चीज अस्त व्यस्त हो जाएगी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और आज जो उन्होंने कहा है कि अगली जो तारीख है उस तारीख तक आप अपनी कमेटी बना लें। जबकि अभी मुझे बातचीत से जो लगा, पंधेर साहब कहते हैं कि हम कमेटी क्यों बनाए, 5 आदमी क्यों बनाए। वाकई सही बात है कि इनमें पार्टियां बहुत है, बहुत गुट है। मैंने उस बार भी जिक्र किया था, आज फिर पुनः कर रहा हूं कि इनके कम से कम 80 गुट है। ठीक है, पूरे 80 संगठन है जो कि उसमें से किसको नहीं लेंगे, सब अपनी चौधर दिखाना चाहते हैं, और हर कोई अपनी चौधर। आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी, उनके किसान संगठन भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी किसान संगठन है, कांग्रेस के भी किसान संगठन है, और सबके संगठन है किसान संगठन, सबके लीडर्स उसमें शामिल होना चाहेंगे। हर कोई अपने आप को निष्पक्ष बताना चाहेगा, तो क्यों नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप आगे आए और कुछ जजों की कमेटी बना करके इन सब दोनों लोगों से बातचीत करके, दोनों पक्षों का करके वो निर्णय दिखाए। फिर उसको आपको लगता है कि 2, 4, 5, 10 नाम ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर सब सहमत हो जाएं? देखिए, मैंने पहले मैं जिक्र कर रहा था लगातार, अगर ये पंधेर साहब चाहेंगे तो हो जाएगा। जी संजय जी, कंप्लीट कर लीजिए। बातचीत में आपके बीच में मैं नहीं टोका था। जी संजय जी, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैं सॉरी वाली बात नहीं, लेकिन मैं किसी बात में टोकता नहीं, अपनी बात को कहता हूं, और उसके बाद आप कहिए, मैं फिर टोकू। ठीक है संजय जी, कंप्लीट कर लीजिए, समय खराब। हाँ जी, इसमें यह है कि वक्त खराब होता है। पंधेर साहब चाहेंगे तो सब कुछ है, क्योंकि ये हर मीटिंग्स में रहेंगे, शुरू से लेकर पहली मीटिंग से लेकर के आज तक, चाहे दिल्ली में टिकैत के साथ का आंदोलन हो या कोई सा भी आंदोलन हो, सबसे समझदार व्यक्ति पंधेर साहब है। और पंधेर साहब चाहेंगे तो लोगों को अपने मुद्दों को,
क्योंकि इसमें कुछ किसान मरे हैं, उनके भी मुद्दे होंगे और सब चीज भी होंगी, और इन मुद्दों को लेकर के वो आगे आ सकते हैं और इस चीज को वो क्लियर करा सकते हैं। मैं आपकी बात से ये समझ पाया हूं कि कमेटी, अगर कमेटी बन रही है तो उसमें एक नाम आपको लगता है कि सरवन सिंह पंधेर का होना चाहिए, कि एक नाम नहीं होना चाहिए रहे हैं, ये इन्होंने सारे संगठनों के साथ मिलकर के काम किया है। अगर मैं कहीं डिनाई कर रहा हूं, और क्योंकि मैं इन चीजों पे किसान आंदोलन से कहीं कहीं मैं भी जुड़ा हुआ हूं, शुरू से मैं इनके साथ जुड़ा रहा हूं, ठीक है, चाहे वो हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश से, या कहीं से भी, मैं भी एक संगठन से हो सकता हूं, क्योंकि मैं इस चीजों ने एज ए पत्रकार मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं कि इसमें हर राष्ट्रीय पार्टी का या क्षेत्रीय पार्टी का किसान संगठन बना हुआ है, अपने कार्यकर्ताओं को उसमें एडजस्ट किया हुआ है। अगर यही नहीं था और उन मुद्दों को नहीं था, और मैं एक बात बता दूं आपको बीच में कि हमारे जो अभी नए कृषि मंत्री हैं वो पूरी बातचीत को अच्छे तरीके से समझने के लिए भी और समझदार व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने एक राज्य चलाया है और अच्छे तरीके से वहां की समस्याओं को किया है। एक बार आगे बढ़े, सब मामले खत्म होंगे। चलिए मैं आपके पास वापस आता हूं। देखिए मैं इसी चीज के ऊपर बात करना चाह रहा था कि कम से कम ये क्लियर तो हो कि हाँ, आप हरियाणा से दो नाम बता दीजिए कि हाँ, हरियाणा में ये दो लोग हैं जो किसानों की बात को बखूबी समझते भी हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। आपने एक नाम का जिक्र कर दिया कि ठीक है, अगर 10 सदस्यीय कोई कमेटी बनती है तो उसमें सरवन सिंह पंधेर का नाम हो सकता है। पंधेर साहब में आ रहे हैं, पर प्रियदर्शनी आप कुछ कह रही थी। जी, मैं संजय जी की बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। बड़ी ही मार्के की बात बोली इन्होंने, बड़ी मार्के की बात बोली इन्होंने, ठीक है। एक बोला इन्होंने कि अराजकता, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कुछ असामाजिक अराजक तत्व, वही तो बात कर रही थी ना मैं, और क्या बात कर रही हूँ, यही बात कर रही हूँ कि अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। खालिस्तानी नहीं है, उनको किया आप जब बोल रहे थे मैं चुप हो गई थी, ठीक है। मैंने आपसे माफी भी मांगी थी अगर बीच में थोड़ा सा बोला था, ठीक है। देखिए, अराजकता फैलाने की कोशिश की, ठीक है। दूसरी बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, एक और बात इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बोली कि भैया अगर आपको बातचीत करनी है तो इतने हाई फाई ट्रैक्टर और ये सब चीजें जाके बात करनी है ना, आपको बात ही करनी है, तो क्यों नहीं बात की आपने? क्योंकि आपका मकसद तमाशा दिखाना था, आपका मकसद था कि किस तरीके से देश डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि दिल्ली डिस्टर्ब होता है तो पूरा देश डिस्टर्ब होता है। तीसरी मुख्यतः बात, बिल्कुल मार्के की बात बोली इन्होंने कि यहाँ पे तो बहुत सारे संगठन है ऐसे किसान के जो कि अपने आप को किसान संगठन अपनी चौधराहट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसकी ऑथेंटिसिटी कौन देगा? इसकी ऑथेंटिसिटी तो कोई नहीं दे सकता ना, सबके अपने फेवरेटिज्म है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हर पार्टी के अपने नुमाइंदे हैं और वहां पे बोल रहे हैं। तो दूसरी बात, अब मैं आपको एक बड़ी नॉलेजेबल बात बताती हूँ, मुझे लगता है कि इस पैनल के साथियों को भी पता होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनसे नाम मांगे थे, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ मुख्य किसान नेताओं से, कुछ एक यूपी वाले भी किसान नेता थे जिनका पॉलिटिकल एजेंडा सबको पता लग गया था, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको नाम मालूम है, ठीक है। नाम भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले उन्होंने खूब हो हंगामा किया, उसके बाद एक तरह से उनकी बातचीत से साफ पता लगने लगा कि उनके पीछे का मकसद है पॉलिटिकल एजेंडा। कोई बात नहीं, चलो हो सकता है किसका एजेंडा। सरकार ने इनसे नाम मांगे कि भैया हमें 6 नाम दे दो, ठीक है। आप यकीन मानिए, इनके खुद के इतनी लड़ाई झगड़ा है, खुद की इतनी चौधराहट की लड़ाई है, ये 6 नाम आज तक सरकार को दे नहीं पाए। सरकार मांग रही है इनसे, बाकी बाकायदा नोटिफिकेशन गया है, ड्राफ्ट मैंने देखा है, नहीं दिया इन्होंने। तो आप बताइए, चलिए मेरे को जवाब लेने दीजिए। होपफुली आपने बहुत तफसील से अपनी बात रखी है। पंधेर साहब, मैं गर्गी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। पंधेर साहब, देखो कमेटी ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 80 ਸੰਗਠਨ 100 ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਸੱਦਣ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਮੰਗਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦੂੰ, 9 ਦਸੰਬਰ 21, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੀਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਚੌਥਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜੀਸੀਪੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਬਖਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਖਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਚੀਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, बॉर्डर टपदे सार लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रियदर्शनी जी रुकिएगा थोड़ा, गर्ग साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गर्ग साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? देखो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, असी इखलाकी तौर पर किसानों दी मंगां दे नाल सहमत हैगे, जिद्दां मैं तुहानूं पहलां दस्सिया ऑर्डर की कॉपी जो पार्टी कोले जां पंजाब सरकार कोले पहुंचेगी तो बिल्कुल उस ते जानी कि विचार वटांदरा होएगा ताकि निरपक्ष लोगों नूं जिन्हां दी जिहड़े कि किसानां नाल भी गल कर सकन, हर धिर दे नाल गल कर सकन, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 80 ਗੁੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, 100 ਗੁੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, MSP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਨਿਰਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ 3.2 ਯਾਨੀ ਕਿ 3.20% ਬਜਟ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 3.15% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਤੀ ਔਰ MSP ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ MSP ਦਾ, ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਰਾਜਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ? ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਚਲਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜੋ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ 6 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 3 ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਦੇ ਦੀ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਜਵਾਬ ਲਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ है, जवाब लीजिए प्रियदर्शनी जी। संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियदर्शनी जी जी मैं अपने सारे साथियों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जवाब छोटा रखिएगा क्योंकि समय पीछे कम है। मैं संजय जी का भी रुख करना मुझे। जी 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 मैं बड़े संक्षेप में एक बात बोलती हूँ। आठ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। देखिए आप सबने ये देखा है, मैं अपने सारे साथियों को भी रिस्पेक्ट बोल रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि किस तरीके से आप वहां पे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। अरे बातचीत करनी है, बातचीत करने के और भी तरीके हैं। 2 देशों के बीच में बातचीत हो जाती है, 10 लोगों के बीच में। आपको अपने ही देश में इस तरीके का माहौल क्यों क्रिएट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा है।
किसान तो बड़े भोले होते हैं, मैं तो खुद किसान परिवार से हूँ, खुद खेती बाड़ी करते हैं मेरे परिवार के लोग। किसान तो बड़े भोले होते हैं, इन भोले लोगों को इन नेताओं ने ठग लिया है। मैं बताऊं, चाहे कहीं के नेता हो, मैं सारे किसान नेताओं को खराब नहीं बोल रही, लेकिन एक तबका जरूर किसान नेताओं का है जो सिर्फ राजनीति कर रहा है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। ठीक है। जहां तक मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की नीतियां कितनी खराब हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आपके खुद के, मैं दिल्ली का एग्जांपल दे रही हूँ, पंजाब में तो ऐसे बहुत एग्जांपल, मैं दिल्ली का एक एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि ज्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं दिल्ली की चीजों पे। इनकी एक खुद मंत्री जिनकी नौटंकी मैं आपको बताती हूँ, इनकी नौटंकी क्या थी आतिशी जी की, कि दिल्ली में अगर पानी नहीं आ रहा, पानी तो आ ही रहा था खैर, लेकिन इन्होंने किस तरीके से संभाल नहीं पाए। पढ़ी लिखी सरकार अपने आपको बोलती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग तक की चीज इनको नहीं मालूम है, अपने आपको IIT, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड सब वहां पे बैठे हुए, लेकिन ये नहीं कर पाए। आरोप नहीं है, व्यक्तिगत आरोप नहीं है। 10 सेकंड दे दीजिए। जी, किस please। तरीके से आतिशी ने ड्रामा किया है ये सबको मालूम है, और 3 दिन के बाद वो ड्रामा खत्म कर दिया। तो आम आदमी पार्टी सिर्फ आग डालने का काम कर रही है। आपने अपनी बात रखी। एक छोटा सा जवाब जो पंदेट साहब कह रहे थे, लगातार कुछ और डिबेट्स में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि आप लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाते हैं कि अगर बॉर्डर खोल दिया गया, किसान आगे बढ़ेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बॉर्डर के इस पार बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कानून व्यवस्था की, जैसे ही पार करेंगे तो कैसे दिक्कत आ जाएगी। आप मुझसे पूछते हैं? जी, सॉरी, आप क्या पूछा? लॉ ऑर्डर कैसे? हाँ, वो कह रहे हैं कि बॉर्डर के अभी जहां पर बैठे हैं वहां दिक्कत नहीं है, बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो कैसे दिक्कत हो जाएगी। नहीं, क्या ये दृश्य किसी से भी छुपे हुए हैं? मेरे ख्याल से तो ये दृश्य सारे भाइयों ने देखे होंगे कि किस तरीके से इन्होंने लाल किले पे जाके झंडा फहराया था, किस अराजकता का प्रदर्शन किया था। तो ऐसा नहीं है ना, ये देश कुछ चंद पूंजीवादियों का नहीं है, ये देश कुछ चंद अपने आप को किसान नेताओं का नहीं है, ये देश सबका है, ये देश सबका है। चलिए ठीक है, तो मैं उसके ऊपर रिएक्शन ले लूंगा, समय कम है। संजय जी का एक बार रुक कर लूं। संजय जी, लग रहा है कि आज की डिबेट के बाद भी कि ये उस तरफ मामला बढ़ पाएगा जहां पर बॉर्डर खुल जाएगा, जहां पर किसानों की मुश्किलों के ऊपर जो भी इस समय उनकी मांगे हैं उनके ऊपर एक राय बन जाएगी। लग रहा है कि उस डायरेक्शन में कहीं बढ़ पाएंगे हम। देखिए, बॉर्डर पे तो स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बॉर्डर तो खुलना नहीं है। अब उस पे तो कोई लेकिन किंतु परंतु है ही नहीं है। नहीं, वो तो एक हफ्ते के लिए बोला उन्होंने। नहीं, उन्होंने एक हफ्ते के लिए बोला। उन्होंने कहा कि जब तक ये हम कमेटी बना रहे हैं तब तक के लिए उसको एज इट इज रखा जाए। हाँ, तो कमेटी ये बनाएंगे तो बॉर्डर खुल सकता है, और कमेटी नहीं बनाएंगे तो नहीं खुल सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का अभी आज उनका डायरेक्शन इनको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये लड़ाई कोर्ट में है जी, न कि अब ये कहीं इधर उधर के किसी और के पाले में है। राजनीतिक पाले अब हो चुके। सरकार का मतदान जो अभी लोकसभा जो अभी चुन के आई है उसमें सबका पता चल चुका है कि कौन कब कहां किधर कितना जीत के आया और कितनी सीटें किसके पास आई हैं, सबके साथ पता दिया। किसानों को इन्होंने, जब किसान बीच में चुप क्यों था लोकसभा चुनाव में, इन्होंने कहा कि अपने वोटों से आप अपना जवाब दीजिए। इन्होंने अपने वोटों से पंजाब से जवाब दे दिया। अब वही चीजें जगह जगह से मिली है। देखिए मैं जी कंप्लीट कर लीजिए सर, समय कम है। जी संजय, तो इसमें है क्या कि इन्होंने जब उस समय कॉल की कि भैया आप पंजाब में जवाब दीजिए, उन्होंने दे दिया। अब इनको क्या है, जब भी वहां पर भी सेकंड पार्टी कौन आई बड़ी चुन करके, बीजेपी रही। चलिए, उन्होंने शुरुआत की जिस तरह से किया हुआ। अब हमें उस राजनीतिक चीजों पे न जा करके सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है, गाइडलाइंस अपनी जारी की है, उन गाइडलाइंस पे अपनी चर्चा को करें और आगे बढ़ें। हम तो ये कहेंगे कि इस काम को करने के लिए बड़ा दिल करके किसानों को अपने बीच में अपने गुटबाजी और सब चीजों को छोड़ करके अपने लोगों के नाम वहां भेजने चाहिए। और कुछ नाम, और जिस तरह की जस्टिस बहुत अच्छे हमारे पास भी, रिटायर्ड भी हैं, अच्छे शिक्षाविद भी हैं, अच्छे प्रोफेसर भी हैं, उन लोगों को लेकर के, और कुछ पत्रकारों को लेकर के, आप जैसे पत्रकार ने देखिए किस बातों को जिक्र करते हैं। हम तो हर किसी को ये कहेंगे कि वो लोग आगे आए और आगे आकर के इस चीज को आगे खत्म करें। राजनीति में हम अभी कुछ और किसी और को जवाब देने रहेंगे, बातें इधर की उधर पहुंच जाएंगी। अब मैडम ने जो जिक्र किया उस पर ये बात बढ़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बात बढ़ाने से नहीं, बात को खत्म करना चाहिए। पंदेर साहब, एक बहुत छोटा जिहा स्टेटमेंट सिर्फ 10 सेकंड दे पाऊंगा। कमेटी ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਬਕਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀ 433 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੁਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ।